Now, our today's speaker has taken it one step higher. She wants us to put a triple filter test on our thoughts. So let us welcome on stage our today's esteemed speaker, Brahma Kumari Sister Ruchi. With a round of applause, let us welcome her on stage. In brief, Brahma Kumari Sister Ruchi, academically, she is qualified as an industrial microbiologist. She did her research at the reputed CDRI Lucknow before she decided to pivot her career into the spiritual path. She had a deep inclination towards serving the society. Hence, she decided to dedicate her life to be a volunteer and a faculty for Brahma Kumaris, serving as a spiritual mentor, meditation teacher, counselor, youth motivator. She has been practicing meditation for over 25 years, and for about 20 years, she is a faculty with Brahma Kumaris. Currently, she is the coordinator of the Kokapet branch of Brahma Kumaris. And interestingly, on an aspect which I'm very, it was good to know that she has started an online series which is Reconnect to Your Inner Net. We are heavily relying on the internet, but she helps people to connect to their inner net. And her sessions are a unique blend of science and spirituality. She leverages her academic background and brings a beautiful blend wherein we are able to see see a very great, how science backs spirituality, and we can have the practical aspects into our life through the meditation tools. Handing over to Sister Ruchi to apply the triple filter test to our thoughts. Om Shanti. So, as a discipline in Brahma Kumaris, we generally start our sessions with meditation, and we have beautiful songs. So, if you allow, we will listen to a song and contemplate with that. Yeah, okay.
से याद कीजिए। Om Shanti. So, as the topic suggests, triple filter test. But for what? Testing what? Testing our waste thoughts. So basically, when we say, I want to test my thought system, yeah, I want to check what I am thinking and how it is benefiting me or how it is troubling me. So when you say thoughts, do you think all the time, whatever I think, I'm thinking good? I'm thinking useful? No. We all are somewhere victim of our waste thoughts. What do we mean by waste? Yes? Thinking about past. Thinking about past is waste? Not always. Look, if I am a student and I learnt a lesson in past and I have exam today, and I say that it is past, then, right? So it depends. Okay, what else? Thinking too much about past. Okay, what else? Thoughts which are not useful. Yes. Thinking too much, planning for future. Thoughts which are not useful. For example, like unproductive. For example, give me one example so that I could understand what is unproductive. Like, give me one example. Saying like thinking about cricket, but we enjoy it. So what do we mean by waste? What is waste? Not be jealous to others. What will happen to us and for future fears? Okay. And rest all are free of waste, is it? हिंदी में बोलूं? हाँ, तो ऐसे बोलो ना, हिंदी में बोलो. Think. अच्छा, जिनकी बिहेवियर हमको नहीं पसंद है उनके बारे में सोचना वेस्ट है. ओके, और हाँ, जो इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं उसके बारे में भी थॉट्स आ जाते हैं, वो भी वेस्ट है. और so that is negative or waste? Negative. No. These are two different categories. Negative thoughts are different. Waste thoughts are different. Negative thoughts are very powerful. Okay, let me make you very clear about categorization of thoughts first. There are basically 4 types of thoughts. According to the categorically 4 types of thoughts. I think those who are coming regularly, they must be very aware of it. 4 types of thoughts. पता है नहीं पता है? आप हाँ हूँ कुछ बोलो, नहीं तो मैं तो अभी चुप कर जाने वाली हूँ. नहीं पता है. ओके. हाँ, वेरी नाइस. और वेस्ट कहाँ गया? अभी तो वही बात कर रहे हैं हम. Very good. 4 types of thoughts. First is positive, negative, neutral, and waste. These are 4 types of thoughts. So we are actually not talking about all these thoughts. We are talking about waste thoughts today.
These are simple categories of thoughts. जैसे किस थॉट से कितनी एनर्जी वेस्ट होती है या कितनी एनर्जी सप्लाई होती है उसके हिसाब से. हाउ थॉट्स आर क्रिएटेड, हाउ थॉट्स बनते कैसे हैं हमारे दिमाग के अंदर? मेमोरी, एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मेमोरी एक जैसी चीज है ना. इंसिडेंट्स वो भी तो वही हो गया ना भाई साहब, मेमोरी में ही इंसिडेंट होंगे, वही एक्सपीरियंस होगा. गुड एक्सपीरियंस से भी तो थॉट्स बनेंगे. हाँ अच्छा ठीक है, एक तो हो गई मेमोरी. ओके नाइस. उसके बाद नेक्स्ट और क्या चीज़ को कहेंगे कि थॉट्स बनते हैं इससे? इमेजिनेशन, थिंकिंग. थिंकिंग को ही पूछ रही हूँ, थॉट्स कैसे बनते हैं. एक आपने बताया मेमोरी, दैट्स गुड, दैट्स करेक्ट. अभी आपके अंदर थॉट्स बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं ना. कैसे बन रहे हैं? While listening, true. कैसे? Who am I for you at this moment? Like speaker, like and where am I in your atmosphere? Right? So the first जो thoughts बनने का तरीका होता है वो होता है through atmosphere. हमारे आसपास जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उनके कारण हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट होते जाते हैं. इसको देखकर कुछ थॉट्स क्रिएट होंगे, इसको देखकर कुछ थॉट्स क्रिएट होंगे. हर चीज़ को देखकर, सुनकर, फील करके. हो सकता है आप मुझे सुन रहे हो इसलिए थॉट्स क्रिएट हो रहे, थोड़ी देर के बाद ठंड लगेगी तो भी थॉट्स क्रिएट होगा. राइट? सो पहला ऑलमोस्ट 80% ऑफ हमारे थॉट्स ये बनते हैं एटमॉस्फेयर से. राइट? उसके बाद नियरली 18% ऑफ थॉट्स जो होते हैं ये बनते हैं हमारे मेमोरीज से. मेमोरीज से जैसे हो सकता है इस वक्त मैं आपके एटमॉस्फेयर में हूँ और आप सोच भी रहे हो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यू रिमेंबर समथिंग. कनेक्टिंग विथ दिस, मे बी आपको मेरी आवाज़ सुन के या मुझे देख के या इस फ्लावर को देख के आपको कुछ याद आ गया जो चीज़ इस वक्त यहाँ नहीं है, जो इस वक्त एटमॉस्फेयर में नहीं. हिंदी तो सबको समझ में आती है. ओके, सो जो चीज़ हिंदी नहीं समझ में आती है ना सबको. राइट? सो हिंदी इज़ बेटर. यू डोंट फॉलो हिंदी? ओ यू डोंट फॉलो हिंदी, ओनली इंग्लिश. हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट फॉलो हिंदी? वेरी नाइस. आपको नहीं हिंदी समझ में आती? जिनको नहीं आती है वो पूछ रही हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट फॉलो? एब्सोल्युटली यू आर गेटिंग ब्लैंक. Okay, I'll try to speak in English and Hindi both. Try to catch in that way. So, when I am speaking here, maybe you looking at me, you remember something else. So that is not in your atmosphere, but in your memories. Through your atmosphere, you get into your memories and you get one thought from there. That is memory generated thoughts. So basically अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं. क्वेश्चन क्या था? हम सोचते कैसे हैं? From where I am getting some thoughts? Where? इसका आंसर है information. Any information you are getting through your atmosphere, you think accordingly. Any information you pull it from your memory, you are thinking accordingly. Any information, third type of way of thinking is if you consciously generate information, that is called choiceful thinking. Now, how it is coming? Choiceful thinking. Like any work, any job, something which you don't know and some subject is given to you
to do it. Mana, like maybe you are cooking some new item or you are in a project, आप कुछ नया बना रहे हैं या कोई नया जॉब कर कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कॉन्शियसली हम उसके बारे में सोचते हैं. कॉन्शियसली आई जनरेट इंफॉर्मेशन, ऐसे करेंगे तो ये होगा. सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, what happens? If I solve a mathematical problem, I actually start generating logics over that. And then we try to solve it, right? So I generate information. Choicefully, I am thinking on that subject. Atmosphere is not giving that subject to me. Even my memory is not giving subject to me. But choicefully, I am thinking that. आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ. बचपन में हमने लिखा था एक ऐसे, माई बेस्ट फ्रेंड, याद है? सबने लिखा था. वी ऑल हैव रिटन वन ऐसे दैट द काउ लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड लिखा था. उसी दिन तो बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया था ना, बेस्ट फ्रेंड तो पहले से बना लिया था. उस दिन लिखा था उसके बारे में, तो लिखने में क्या किया था, सोचना शुरू किया था. We started thinking, okay, Abhishek is my best friend. He shares his lunch box with me. He helps me completing my homework. Abhishek is always helpful to me. All these thoughts were there already here and there scattered. When I was sitting to write an essay on my best friend, first of all, I tried to locate who is my best friend. So maybe like Kona, Jyoti, Swati, Abhishek, Amit, Sukhvinder, all these people, out of all these people, I find Abhishek is my best friend, right? So in that, all of them, separating all these people, I said, okay, Abhishek, now think about Abhishek, what he does. अब अभिषेक के बारे में सोचो, वो क्या करता है, वो ये करता है, ये करता है, ये करता है. तो दिस इज चॉइसफुल थिंकिंग, राइट? Meditation falls under choiceful thinking. लेकिन टेंशन भी इसी के नीचे आता है. टेंशन इज अ चॉइस, नॉट कंपल्सन. हमको लगता है ना टेंशन आता है एटमॉस्फेयर से. ये चॉइसफुल थिंकिंग जो है ना 1 to 2% ही होती है, लेकिन ये बहुत फॉर. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मच ऑन थिंकिंग प्रोसेस टू यू, but just to support the session, I am giving details. So, ye choiceful thinking, meditation, thinking peacefully, making yourself peaceful, it is a choice. Choicefully, you generate those thoughts. But dramatically, tension भी इसी कैटेगरी में आता है. बात कितनी सी होती है, देखो एक ऑफिस होगा, एक ऑफिस या यहाँ अभी right now. We all are in this classroom, okay? And we all are having similar type of thoughts together. एक session हम deal कर रहे हैं, right? अभी अगर director शांति सरोवर आते हैं, she won't, but she comes here and she is scolded, all of us together. Oh, you are making noise or something, or anything, right? She came, she given attention all of you, and after that she left. एक बात बताइए, उनके जाने के बाद हम सब एक अमाउंट ऑफ टेंशन पे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना. हम सब अलग अलग अमाउंट ऑफ टेंशन पे रहेंगे. Immediately once she left, some of you will say, okay sister, we will not make noise further, let us complete our session. Some of you will say, no, let us pack up the session, क्योंकि फिर हम बोलेंगे, फिर आवाज़ होगी, इसको बंद कर देते हैं. और कोई ऐसे होंगे जो 2 दिन बाद भी सोचते रहेंगे, हाउ कम शी सेड कि हम नॉइज़ कर रहे थे. कोई ऐसे भी होंगे जो नेक्स्ट संडे सोचेंगे, जाऊँ ना जाऊँ, आज भी अगर डांट पड़ गई तो क्या होगा. सो एक्चुअली सोर्स ऑफ टेंशन एक ही था, टाइम ऑफ गिविंग टेंशन एक ही था, मेथड ऑफ गिविंग टेंशन भी एक ही था, लेकिन अमाउंट ऑफ टेंशन अलग अलग था. तो अब बताइए, टेंशन वो दे रहे थे या हम ले रहे थे?
हम ले रहे थे, वो नहीं दे रहे थे। वो तो उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की, बस हमने जो लिया वो हमने ही लिया, हमने लिया। किसी ने तो उनके जाते ही कहा ओके, उन्होंने शांत रहने को ही कहा है ना, उन्होंने थोड़ी कहा कि क्लास बंद कर लो, उन्होंने कहा थोड़ी आवाज़ धीमी कर दो, बस चलो आवाज़ धीमी कर, सिस्टर आप माइक निकाल दो, हम अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। कोई थोड़ा डर गए ना भाई पता नहीं हम करेंगे तो हम बोल ही लेंगे, आवाज़ कर लेंगे, लेकिन चलो सेशन अभी कंप्लीट कर देते हैं सिस्टर, चले जाएंगे। कोई होंगे जो आज रात को जाकर कोमा में सोते रहेंगे, फिर कल उठकर बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, चलो हो गया, पास्ट इज पास्ट, चलो आज फिर जाते हैं। कोई तो अगले संडे तक सोचते रहेंगे जाऊँ ना जाऊँ। सो that is choiceful thought, tension. Negative thoughts are actually choiceful thoughts. In the same way, positive thoughts are also choiceful thoughts. You choose to think positive, and if you have to give a reason to yourself why you are thinking this. Okay, so this was supportive story. मैं उसमें नहीं जा रही हूँ thinking process में. That is a total new session. Okay, waste thoughts. वेस्ट थॉट्स। वेस्ट घर के अंदर कोई भी चीज़ या ऑफिस में या इस रूम में वेस्ट कौन सी चीज़ होती है? जैसे अभी राइट नाउ अभी ये टेबल वेस्ट है, लेकिन हमेशा तो ये वेस्ट नहीं होता, कभी कभी तो ये यूज़ होता है। अभी एट दिस मोमेंट ये मॉनिटर वेस्ट है, लेकिन कभी तो ये यूज़ होता है। So universally there is nothing called waste. Maybe something which is waste for me is useful for you. कोई चीज़ होगी जो मेरे लिए वेस्ट होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी, आपके लिए जो वेस्ट होगी वो मेरे लिए यूज़फुल होगी। तो यूनिवर्सली वेस्ट कुछ नहीं होता है। वेस्ट इज कनेक्टेड विथ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, अभी किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है? मान लीजिए मुझे टाइम पर ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट कैच करनी है, और उस समय कोई बैठकर मुझसे बहुत प्यार भरी बातें करे, कहे नहीं 1 घंटा मेरे साथ साथ बैठे रहो, आप बहुत ही अच्छे हो। हाँ, मुझे वो व्यक्ति भी बहुत पसंद है, मैं चाहता भी हूँ उसके साथ बैठना, बैठेंगे हम। उस समय वो प्यार बड़ा टॉक्सिक हो जाएगा, है ना? कहेंगे हम अभी जाते हैं, अगले हफ्ते वापस आएंगे, फिर 1 नहीं 2 घंटा बैठेंगे आपके साथ, राइट? अगर उस समय मुझे अभी एक फ़्लाइट कैच करनी है और उस समय कोई कहे सिस्टर अभी ना आपको 2 घंटे मेडिटेशन करना है, मैं करूँगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं कहूँगी बाद में करूँगी, मुझे अभी फ़्लाइट पकड़ना है। सो दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट। मेडिटेशन इज़ यूजफुल फॉर यू, नॉट दैट टाइम, not that time, right? In the same way, some food is useful for you, but not with that wrong combination, not with wrong timing. इसी तरह हमारे अंदर भी वेस्ट थॉट्स चलते हैं जो स्लोली टॉक्सिक बन जाते हैं। Now, what is triple filter test? This is a story, not a story basically, it's an incident. You know Socrates? हिंदी वाले सुकरात महान दार्शनिक सॉक्रेटिस, यस यू नो। जिनको नहीं मालूम है, सॉक्रेटिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। सो दिस इज स्टोरी फॉर मना, दिस इज वन ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ हिस्ट्री। इट सो हैपन one day Socrates was busy with his work, and his friend, one of his good friends, he came and said, "Oh, Socrates, please come here. I have a very interesting piece of news for you." He said, "What?" He said, "Oh, come, let's talk together. I have a news for you. मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, इधर आओ, तुम्हारे पड़ोसी के बारे में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने आया हूँ." So Socrates said, "Okay, wait for a moment. Let me check. This piece of news which you say, ये मेरे लिए useful है क्या?" So then the friend was little confused
कि भाई यूज़फुल है या नहीं है ये तो बाद में पता पड़ेगा ना, बाद में पता पड़ेगा, मैं अभी कैसे बता दूं। तो सोक्रेटिस ने कहा नहीं, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा बताओ, तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, हाँ तुमको पता पड़ेगा तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। Then Socrates said, okay, let me check you. The small piece of information, so-called news, you are saying on the name of knowledge, let me check it is really going to add to my knowledge or not. Now, friend was very surprised with the philosophy, the great philosophy of Socrates. He said, okay, go ahead, check this, means how you are going to check it. Okay, answer my first question, he said. The piece of information the piece of news you came with, is it true? तुम जो बात लेकर आए हो ये सच है? The friend said, I don't know, I'm not sure, I didn't check it. मैंने नहीं चेक किया, मुझे नहीं मालूम है, मुझे पता नहीं है ये सच है या नहीं है. So Socrates said, okay, fine. Second question, he said, okay, the piece of information which you brought for me, it is for goodness, towards goodness. जो बात तुम मुझे सुनाने जा रहे हो, इसमें कुछ अच्छाई भरी हुई है? So the friend was speechless. He said, नहीं, अच्छाई तो कुछ भी नहीं है इसमें. It is almost opposite of that. That is why it was interesting. So नहीं, बहुत अच्छाई तो नहीं है इसमें. He said, okay. Now third question. Do you think if I don't listen to this information, I will lose one important aspect of my personality? मतलब अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो मेरी पर्सनालिटी में कोई चीज़ छूट जाएगी, रह जाएगी, ऐसा लगता है तुमको? Then he said, नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है. Get me clear. So Socrates said, if I do not listen to this information, even then I am complete in my personality या मैं incomplete रह जाऊंगा? So said, नहीं, तुम complete ही रहोगे, इस information के बिना भी तुम्हारी जिंदगी ठीक ठाक ही चलने वाली है. Then Socrates said, छोड़ दो, मुझे मत सुनाओ. This is triple filter test. What we do. अब बताइए, अब अपने दिन को शुरुआत से शुरू कीजिए. सुबह उठते ही हमारी एटमॉस्फेयर से हम कितने इंफॉर्मेशन लेते हैं? एटमॉस्फेयर में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप. कितने मैसेजेस में भी आपको वो गुड कोट्स ही आते होंगे, कुछ अच्छे वाले कोट्स, 10 कोट्स तो आ ही जाते होंगे, इस ग्रुप में, उस ग्रुप में. सुबह हम जो इतने सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं उसमें नंबर 1, क्या वो सच है? चेक किया है? नहीं चेक किया होता है ना, बहुत बाद में पता चलता है कभी कभी ये सब फेक न्यूज़ थी. क्या ये गुडनेस की तरफ ले जाता है, अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है आपको? और क्या अगर आज मैं ये न्यूज़ नहीं सुनूंगा तो मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी? अगर ये तीनों में से 2 में भी नहीं आता है तो मत सुनिए ना. एक बात बताते हूँ, आप सच बताना, अपनी दिल पर हाथ रख के बताना. आपके बच्चे अभी जिस एज में हैं, जिस भी एज में हो आपके बच्चे, किसी का बच्चे 20-22 साल के होंगे, किसी के 15-16 साल के, 8-7 साल के, 30 साल के भी होंगे. आपके बच्चे जितने भी एज के हैं, आपको अपनी लाइफ याद है जब आप उनके एज में थे? याद तो होगी. अच्छा,
जब आप उनकी एज के थे, योर चिल्ड्रन, दे आर एट विच एज राइट नाउ, when you were at their age, do you think you were emotionally more sound than our children now? Emotionally, not academically, not technologically. We were emotionally stable than our children. अभी के बच्चे बहुत vulnerable हैं, touch me not, है ऐसा? Sensitive हैं, emotionally सेंसिटिव हैं ऐसा? अच्छा, हम लोग अभी जिस एज में हैं, वी पीपल, हमारे पेरेंट्स इस एज में थे, याद है? हमारे पेरेंट्स जब इस एज में थे, जो भी आपकी एज हो, आपके पेरेंट्स इस एज में रहे होंगे, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग थे इमोशनली, चीज़ों को इमोशनली, एकेडमिकली वो हमसे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इमोशनली दे वेर मोर स्ट्रॉन्गर देन अस। क्यों? उन्होंने पढ़ाई कम की थी, इंफॉर्मेशन कम थी, हमारे जैसे कई प्रकार के ट्रेनिंग भी नहीं लेते थे, और फिर भी वो हमसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे। हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड हैं, हमसे अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो भी हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपनी उस एज में। क्यों? क्यों? अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन। देखो, अगर हम हेल्थ की बात करें या दवाइयों की बात करें या हेल्थ की अच्छी फ्रूट्स की ही बात कर लो, या अच्छी कई सारी हेल्दी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक दिन में खा लें? सारी चीज़ें खा लें? नहीं, क्यों? हेल्दी है, सारे फ्रूट्स एक दिन में खा लें? फ्रूट्स खाना तो अच्छी बात है ना, खा लें? सारी सब्जियां खा लें एक दिन में? नहीं, क्यों नहीं? बहन जी, तरीका होता है, अगर ये खाया है तो वो नहीं खाना है, वो खाया है तो वो नहीं खाना है सारा अच्छा अच्छा ही, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भरने से यहाँ एक ब्लास्ट होता है। यू आर ओवर इन्फॉर्म्ड and you will be going with a blast here, and this is the problem with generation and generation. We are getting overloaded with information. ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी हमारे पास है। एक ज़माना होता था, डॉक्टर हाथ लगा के नाड़ी देखते थे, दवाई लिखते थे, तबीयत ठीक हो जाती थी, हैं? स्टेथोस्कोप भी नहीं लगाते थे, हाथ से देखते थे, तबीयत ठीक हो जाती थी। अभी एक 25-30 टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल के टेस्ट होते हैं, उसके बाद स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, उसके बाद कई दवाइयाँ खाते, फिर भी तबीयत ठीक नहीं होती है। सो बेसिकली इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ओवर इन्फॉर्मिंग यू, इट इज़ अबाउट बीइंग नॉलेजेबल। कम जानना प्रॉब्लम नहीं है। If you know less, it is not problem. It is about how you know it. You know it like an information or a news, or you know it like a wisdom. If you know it like a wisdom, अगर आप कोई चीज़ को विवेक की तरह यूज़ करते हैं, तो आप उस चीज़ से जीत जाएंगे। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट नंबर 1, जो चीज़ मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, जिसको मैं इंटरेस्टिंग समझ रहा हूँ, क्या ये सत्य है? पहला टेस्ट, क्या ये सत्य है? ट्रुथफुलनेस, क्योंकि सत्यता एक बड़ी शक्ति है। इज इट ट्रुथ? मालूम नहीं, यूट्यूब पे 1000 चीज़ें हैं जो सही नहीं है, राइट? Number 2, is it taking you towards goodness?
ये चीज़ आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएगी या वेस्ट की तरफ? मैं बुराई भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है एक एक मैसेज ड्राइव करने में, एक एक चीज़। क्यों पढ़ें? क्यों? इफ आई कैनॉट प्रोसेस इट, why to read it? It is better to be uninformed rather dump everything. आप एक काम करो, अभी ये दीवार है या ये हॉल है, अच्छा लगता है? ये हॉल दिखने में सुंदर लगता है? सुंदर लगता है ना? एक्चुअली ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है और पिंक कलर उनको बहुत पसंद है और ब्राउन कलर उनको बहुत पसंद है। क्या करें? थोड़े ब्लू कलर के भी पर्दे लगा देते, थोड़े पिंक कलर के भी लगा देते, थोड़े ब्राउन के लगा देते हैं। हमारी जो डायरेक्टर दीदी हैं उनको येलो कलर पसंद है, थोड़े 2-4 पर्दे येलो भी लगा देते, सब कलर के लगा देते। कैसा लगेगा हॉल फिर? हाँ, नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। सो इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट, सब कुछ जानना या सब कुछ कैरी करना से, अभी अगर मैं आपके सामने अभी एक पेन और एक माइक लेके खड़ी हूँ, मैं आपको अभी कैसी दिख रही हूँ, और इसके बाद मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मैं पकड़ सकती हूँ, भाई मेरी कैपेसिटी है। लोग कहते हैं ना मेरी कैपेसिटी, इफ़ आई कैन डू वाई शुड नॉट आई डू? यस, डू इट, मेरी कैपेसिटी है, मैं पकड़ सकती हूँ। अभी कैसे दिख रही हूँ? मेरी कैपेसिटी है, मैं पकड़ सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आप दिख कैसे रहो? ओवरलोडेड। दिखने में ही आप टेंस्ड दिख रहे हो, एंड आप एक्चुअली टेंस्ड हो, क्योंकि ये सब पकड़ने के बाद अगर हमारे दीदी अभी आते हैं, मैंने सब पकड़ लिया, सब पकड़ लिया, मेरी कैपेसिटी है, मैं कर सकती हूँ, वेरी गुड। अब अगर दीदी आते हैं और दीदी कहेंगे प्रसाद है, सभी को प्रसाद मिलना है, आप सब तो ले लेंगे, मैं कहाँ लूँगी? मैं कहाँ लूँगी? नहीं ले सकती हूँ, ये सब रखना पड़ेगा वापस। तो बेसिकली अपनी लाइफ में भी इस बात को याद रखिए, नोइंग एवरीथिंग इज नॉट ब्यूटिफुल, नोइंग एज मच एज रिक्वायर्ड एंड using it to beautify your life is important. So always test your information. Sorry, मैं ये information मुझे goodness की तरफ ले जा रही है या नहीं? And third, important, is it useful now? Now, अभी ये useful है या नहीं अभी की सिचुएशन में? अदरवाइज इट इज अ मेमोरी पीस, लेट इट गो इन मेमोरी, लेट इट लीव इट हियर, राइट? सो यूज योर ट्रिपल फिल्टर एवरी डे टू एक्चुअली सेट योर मेंटल एबिलिटीज। अब ये तो हो गया, अब उन सब चीज़ों का क्या करें जो पहले से अंदर वेस्ट भरा हुआ है? बहुत सारा सीख लिया है, सोच लिया है, रख लिया है इंफॉर्मेशन अंदर। सिस्टर, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक वेस्ट, लेकिन चला आता है दिमाग में, बार बार वो आ जाता है, क्या करूं? क्या करूं? आई ट्राई टू, होता है आपके साथ, आई ट्राई टू फॉरगेट, मैं बहुत चाहता हूं इस चीज़ को भूल जाऊं, आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट। होता है ऐसा? अब वो क्यों होता है वो बताती हूँ। क्या होता है, ये है हमारा दिमाग, ये हूँ मैं। अब मेरी हैंडराइटिंग जितनी सुंदर है उससे सुंदर ड्राइंग है, दिख रहा है? हाँ, ये हूँ मैं, ठीक है? अब मैंने जो सोचा, वो सोच कहाँ से आती है? Either I will listen to it, or I will read it, or I will feel it, right? या तो मैं पढ़ूंगी, देखूंगी, सुनूंगी, या फील, टच से कोई इंफॉर्मेशन आएगी, राइट?
जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, every information is going to develop one thought in my mind, right? Thought. तो यहाँ से सोल की प्लेस यहाँ है एंड मे बी नियरेस्ट. अब आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज. इट इज़ नॉट रियली कि यहाँ पर ऐसा कुछ बनता जाता है अंदर में. ये एक आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. सो से फॉर एग्जाम्पल ये एक एक थॉट्स बन रहे हैं हमारे दिमाग में. ये फर्स्ट थॉट ये जो बना ना, वो इधर पुश होता जाएगा, फिर एक न्यू थॉट यहाँ बनता जाएगा, फिर ये पुश हो जाएगा, फिर एक न्यू थॉट बनता जाएगा, राइट? और ये थॉट्स ऐसे ऐसे करके इस रास्ते से हमसे हमारे ब्रेन स्पेस में ये एग्जिट है. बाद में ये यहाँ से बाहर चले जाएंगे अपने आप. ये थॉट्स बनेंगे और ये धीरे धीरे करके बाहर चले. जो थॉट एक बार मेरी मेमोरी या माइंड स्पेस से एग्जिट हो गए, वो हमको कभी याद नहीं आएगा. जैसे आपसे अगर मैं पूछूं, आपके प्राइमरी स्कूल की कोई टीचर याद है? थैंक यू. प्राइमरी स्कूल की कोई टीचर याद है? कोई टीचर का नाम? हाँ, स्कूल का नाम तो याद होगा, टीचर का नाम भी याद होगा. याद है? हाँ. आपको 10th क्लास में मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर याद है? अरे प्राइमरी स्कूल याद है और 10th क्लास का? अच्छा. ये संडे है ना? आज क्या डेट है? 25 मई. 25 अप्रैल को क्या नाश्ता किया था याद है? अनलेस एंड अनटिल आपका बर्थडे ना हो, नहीं याद होगा ना? तो 1 महीने पुरानी वाली चीज नहीं याद है और प्राइमरी स्कूल की टीचर याद है. ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे आपकी मेमोरी काम करती है? अब इस सिस्टम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, which thought is getting old, that thought should get exit first, right? And that thought, those thoughts which are coming recent, that thoughts should remain memorable earlier. तो अभी पिछले बेंजी आप 25 अप्रैल की बात कर रहे हो, परसों जो खाया था वही नहीं याद है. क्यों? ये हमारे अंदर का मेथड है जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो यहाँ होता है. अब ऐसा नहीं होता, ये ना सोचना कि अंदर में बुलबुले बन रहे हों या गोलियाँ बन रही हों. पहले बता दे रही हूँ. ये क्या होता है, ये ना अपने आप से जा रहा होता है. थॉट्स अपने आप से जा रहा होता है एग्जिट की तरफ. जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि हम भूल नहीं पाते हैं कोई वेस्ट या नेगेटिव जो हो गया मेरी लाइफ में, अब जो हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें हम ट्रिपल फिल्टर अप्लाई करेंगे और अनसेंसर्ड इंफॉर्मेशन, अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन को अंदर नहीं लेंगे, सो दैट आई कुड बी सेफ. जो सच नहीं है, जिसके सच का पैरामीटर नहीं है, जो गुडनेस की तरफ नहीं ले जा रहा है और जो अभी यूजफुल नहीं है, उसको हम नहीं लेंगे. दैट इज़ ओके. जो अंदर है ऑलरेडी, उसका क्या करना है. अब क्या होता है, यहाँ से ये थॉट्स अपने आप एग्जिट की तरफ जा रहे थे. जा तो रहे थे, यहाँ तक पहुँचा था ये वाला थॉट. ये कौन सा वाला थॉट था? प्राइमरी स्कूल की टीचर वाला थॉट था. अभी ये थोड़े 2 दिन में निकल जाने वाला था. इतने में क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड से मैंने कहा, पता है मेरी प्राइमरी स्कूल की टीचर बहुत अच्छी थी. ये वापस यहाँ आ गया. आई रिवाइज्ड इट. सो इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स एग्जिट. जैसे simple, very simple, like there are many things in your cupboard or in your kitchen, those things which you use frequently. जो डब्बे आप frequently use करते हैं, क्या होता है, वो डब्बे धीरे धीरे करके सामने आ जाते हैं, और जो डब्बे आप यूज़ नहीं करते हो वो डब्बे पीछे चले जाते हैं, राइट? सेम थिंग. जो इस थॉट, ये बेचारा जा रहा था, आपने रिवाइज कर लिया, ये वापस फ्रंट में आ गया. अब ये फिर से वापस जाएगा. इतने में एक दिन आपको आपकी टीचर की याद आ गई, वो मैम कितना अच्छा पढ़ाती थी ना. वापस से ये सामने आ गया. अभी ये यहाँ तक पहुँचा था, फिर यहाँ से सामने आ गया. इसलिए आप इसको भूले नहीं. सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा भी एक बात होती है. हमारे दिमाग के अंदर एक ना इम्पॉर्टेंट फोल्डर होता है.
अपने आप इनबिल्ट सिस्टम में, जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट। अब ये इम्पोर्टेंट फोल्डर में क्या होता है, इम्पोर्टेंट फोल्डर में बेसिकली 2 भाग होते हैं। एक वाला भाग जो होता है ना, ऐसी यादें जो हमको बहुत बहुत उससे बहुत गुड फीलिंग रही हो, तो हम अपने आप को इंटरनली कहते हैं हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे, गुड या बैड। अगर आपने एक बार अपने आप को कह दिया ये बात, अरे ये आदमी इतना अच्छा है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा, इंटरनली वो थॉट इस सिस्टम से निकल के इसके अंदर चला जाएगा। जैसे आपको मे बी याद होगा, दादी नानी या आपकी मम्मी, एक बार, कब, 20 साल पहले एक बार दिवाली में आपकी मम्मी ने एक खीर बनाई थी, बड़ी टेस्टी थी। वैसी खीर दोबारा नहीं बनाई है, वो खीर याद रह गई। होता है ऐसा, वो जो मम्मी बनाती थी ना वो बड़ा अच्छा होता था, मम्मी को ही बोलो अभी बनाने को, नहीं बनाएंगी वो वैसा, वो एक दिन बड़ा अच्छा, वो याद रह गया। क्यों? क्योंकि उस दिन आपने उसको कह लिया था कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट फोल्डर में चला गया। तो एनीथिंग विच यू से इम्पोर्टेंट और यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम, वो इम्पोर्टेंट फोल्डर में चला जाता है। ये तो हुई अच्छी बातें। अब आ जाओ दूसरा, नेगेटिव बातों पर। ये बेचारे ये वाला जो थॉट है ना, ये वाला थॉट मेरा इनसे झगड़ा हो गया था, नहीं करूँगी, लेकिन मान लो इनके साथ मेरा झगड़ा हो गया, ये वाला वो झगड़े वाला थॉट है, ठीक है, हो गया। वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चली गई, और ये अपने रास्ते जा रहा था, इतने में आप आए और आपने कहा अरे वो आपकी फ्रेंड थी ना। मैं कहा नहीं, वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, उससे तो मेरा झगड़ा हो गया था, यहाँ तक पहुँचा था बेचारा, मैंने बुला लिया इसको वापस यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जा रहा था, फिर एक दिन वही आ गई, बात नहीं कर रही है मुझसे, आई लेकिन बात नहीं कर, देखा आज भी बात नहीं कर रही, उस दिन किया था ना इसने झगड़ा, इसलिए बात नहीं, वापस से ये इधर आ गया। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग, इट इज़ नॉट AI, इट इज़ नेचुरल इंटेलिजेंस एंड वेरी इंटेलिजेंट। ये कहता है जो चीज़ बार बार रिवाइज की जाए इसको इम्पोर्टेंट फोल्डर में डाल दो, ठीक? क्यों? क्योंकि आपने 4 बार उसको रिवाइज कर लिया, एक बार आपको सुनाया, एक बार आपको सुनाया, एक बार उनको सुनाया, एक बार खुद के अंदर ही याद कर करके उनको डांट लिया, हाँ, एक बार उनकी शक्ल देख करके याद आ गया, एक बार उनका मैसेज देख करके याद आ गया, उनको बोल लिया बार बार। अब ये इतनी बार रिवाइज हो गया तो अंदर वाले सिस्टम ने समझा अरे ये थॉट इसको बहुत पसंद है, इसको ये this thought is very useful for them, this person is not allowing this thought to get an exit, she is revising it again and again, put it in important folder, Om Shanti, khatam. Now story is different, now you have to work on this to forget it. होता है ऐसा, बचपन के दोस्त, बचपन के लोग वो अभी तक याद हैं, कल परसों कहाँ गए थे रास्ते भूल जाते हैं, सब याद रहता है, पुराना वाला कैसे याद रहता है, वाई, बिकॉज इट इज़ इन दिस फोल्डर। भूलने से भी नहीं भूलते हैं, भूलने से भी नहीं भूल पाते हैं, तो इस फोल्डर में चला गया। जो नेगेटिव बातें होती हैं ना, ऑल नेगेटिव इंसिडेंट्स, they also go into no important folder. How? Because you revise it again and again, inside or outside, you revise it. What do you keep saying? I don't bother about that, but I am just telling you. मैं नहीं सोच रही हूँ उनके बारे में, लेकिन आपको बता रही हूँ कि उनसे ना झगड़ा हो जाता है, आप उनसे बात नहीं करना, आप उनका क्या हुआ वो छोड़ दो, आपका जो हुआ वो समझ लो, आपका फिर क्या होने वाला है। You are actually spoiling your memory bank, and once your memory bank is full with negative, you have to
पे लॉट ऑफ, जैसे शरीर में फैट जमा हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना उसको रिलीज़ करने के लिए, ऐसे ही आपकी मेमोरी में से ये निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस रास्ते अगर जा रहा होता था, अगर आप नॉर्मल एक गुड डाइट लेते थे, रोज़ एक एक्सरसाइज करते थे, तो क्या होता था, आपका इनटेक वर्सेस इनपुट वर्सेस आउटपुट ठीक ठाक रहता था, आप ठीक ठाक रहते थे, वो नॉर्मल प्रोसेस में जा रहा था, वो जा रहा था और एक दिन जाकर भूल जाने वाला था। गड़बड़ किसने की? इट वॉज गोइंग इट्स ओन वे। हु डिड द मिस्टेक? आई डिड दैट मिस्टेक। मैंने इसको बार बार रिवाइज किया और मैंने उसको लाकर यहाँ डाल दिया। अब करो मेहनत, अब you have to work on this. Those thoughts which has gone inside your memory, saying I am important, क्या करोगे आप उसका? Easy. आज उसको समझाती हूँ। Conclude it. Conclude. Give a conclusion to those thoughts. मेरा इनसे झगड़ा हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला? One positive conclusion will help you to vacate this unrequired important. मैंने ये न्यूज़ पढ़ ली जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे मैंने ये सीखा कि मुझे आगे से नहीं पढ़ना है। ओके तो वो आपकी ट्रेनिंग बन गई। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ वेस्ट थॉट, make it your training. So once you make it, when it is coming into your training, the whole process is changed. Internal machinery कहेगी अरे ये तो इसकी ट्रेनिंग थी। Okay, do not stick to that incident, stick to the conclusion. ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं? आउटकम लेकर आते हैं ना, ट्रेनिंग के बाद क्या सीखा, तो वो लास्ट रिजल्टेंट पे स्टिक हो जाता है, प्रोसेस को भुला देते हैं। तो देन दैट प्रोसेस विल बिकम योर ट्रेनिंग। सो योर माइंड विल से ओके दिस, ये जो झगड़ा हुआ था, दिस क्वेरल वाज डन टू रिजल्ट, टू नो दैट यू हैव टू मेक फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दिस, और आपको लोगों को चेक करना था, वॉट एवर इज दैट। तो आपका दिमाग उस रिजल्टेंट पर स्टिक हो जाएगा, उस जो प्रीवियस इंसिडेंट है ना उसको भूल जाएगा। सिंपल साइकोलॉजी। गेटिंग इट? कंक्लूड योर वेस्ट हिडन थॉट्स। जो कह रहे थे अभी, पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। जो पास्ट के बारे में सोचते हैं, इट इज़ देयर इन योर मेमोरी बैंक। कंक्लूड इट। इट हैपेंड, ये हुआ है। What is the resultant? What I learnt out of that? One of our senior administrative heads, her name was Didi Manmohini. She had a very nice method and she used to tell us कि वो हमेशा हर चीज़ के बाद कुछ भी करके आते थे। अभी ये क्लास होगी ना, क्लास करके आएंगे तो कहेंगे क्या सीखा, क्या सीखा? वन क्वेश्चन, क्या सीखा? आप अगर वॉकिंग के लिए जाओगे, वॉकिंग करके आओगे, और एंड जस्ट लाइक गोइंग एंड कमिंग बैक, यू जनरली इन्फॉर्म योर एल्डर्स ना, आई एम गोइंग और आई केम बैक। सो शी आस्क्ड वन क्वेश्चन, क्या सीखा? मेडिटेशन करके उठोगे, शी विल आस्क क्या सीखा? कुछ भी। इफ़ यू गो टू असिस्ट समबडी, एनी ऑफ सिस्टर्स, यू आर गोइंग टू असिस्ट हर, कि उनके काम में मदद करने जा रहे हैं, जब करके आएंगे शी विल आस्क क्या सीखा? And that one method, क्या सीखा? What did you learn? What did you learn? The one question she used to ask for everything, what did you learn out of it? That one question simply eliminates the whole process and it conclude that process for resultant. So you will carry that one thing inside, क्या सीखा? And you will leave the previous, क्योंकि उसमें अच्छा भी, once you are going to meet somebody or you are working with somebody, what happens? You carry many thoughts and emotions from them. Earlier हमने एक सेशन किया था, देखो, unleashing our energies.
उस दिन ऑरा और बहुत सारा हम कईयों के एनर्जी अपने अंदर जमा करके ले आते हैं. वंस यू गिव अ कंक्लूजन टू योर थॉट, क्या सीखा, क्या होता है, ये सब रिलीज हो जाता है. ओनली दैट वन एस्पेक्ट विल रिमेन इनसाइड और क्लेंजिंग हो जाती है यहाँ की. राइट? ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट प्रीवियस वेस्ट, एंड जो अभी अपकमिंग वेस्ट है उसको ट्रिपल फिल्टर. वेदर इट इज ट्रू, it is bringing you towards goodness, it is useful right now or not. If no, 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 no for that. I don't want to know. I don't want to know. पहले सबसे पहला काम कीजिए, अपने व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड को ख़त्म कीजिए. डू नॉट डाउनलोड एवरीथिंग. वहाँ डाउनलोड होता है, यहाँ डाउनलोड हो जाता है. नहीं करना है. कम जानना अच्छा है. हमारे पेरेंट्स कम जानते थे, हमसे ज़्यादा स्टेबल थे. हम कम जानते थे, अपने बच्चों से ज़्यादा स्टेबल थे. कम जानने से प्रॉब्लम नहीं है. यू शुड नो लेस, बट वट एवर यू नो इट एज अ विजडम. देन इट इज़ मास्टरी. राइट? It is not half knowledge, it is less knowledge. There is difference between half knowledge and less knowledge. Half meal and less meal में फ़र्क होता है. तो बस अगर आपको सिर्फ चावल खिला दूँ, that is half meal. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा अचार, थोड़ा सलाद दे दूँ, that is less meal but full meal. समझ में आ गई बात? राइट. और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं. नो क्वेश्चन मीन्स टू थिंग्स. समझदार हो. ये समझ में बराबर आया आपको जो मैंने लास्ट में कहा? कौन से कैटेगरी में हो? नहीं बताएंगे. तो इमोशनली ऐसा ट्रिगर कर देते कि द पर्सन में गो लाइक बिकम मैड और वॉट एवर, ही डजंट हैव कंट्रोल अपॉन हिमसेल्फ. सो उस थॉट्स को हम कैसे डील करेंगे? एक बार अगर इफ यू वेंट आउट ऑफ कंट्रोल वंस एंड देन चेक योरसेल्फ, व्हेन आई वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, वाज इट यूजफुल फॉर एवरीबडी? Was that true nature of mine? Was it bringing me towards you goodness? If not, then दूसरी बार के लिए अपने को इन्फॉर्मेशन दे दो ना. अगर आपने उस इंसिडेंट को कंक्लूड नहीं किया, जैसे शांति सरोवर पहुंचने के इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं. राइट? आप में से बहुत सारे लोग होंगे आते उधर से होंगे, लेकिन इस रास्ते से नहीं आके इधर से आते होंगे. या बहुत सारे होंगे जो इसको छोड़ करके इधर से आते हो. इधर सिग्नल बहुत बड़ा लगता है, बहुत लंबा लगता है. राइट? क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को थॉट दिया हुआ है, इधर टाइम वेस्ट हो जाता है, या ये रास्ता बहुत घुमावदार है, हमको पहले ये रास्ता अच्छा नहीं था, तो इधर से नहीं आना है, इधर से आना. राइट? जब कोई रास्ता हमको डिफ़िकल्ट लगता है, ख़राब लगता है, तो वी गिव अ थॉट, अगली बार से इधर नहीं जाना है. कंक्लूड योरसेल्फ, ये रास्ता सही नहीं था, अगली बार से नहीं करना है. यू डिडंट कंक्लूड इट. आपने कंक्लूड नहीं किया तो फिर से वही होता है, फिर से वही होता है. इट्स वेरी ईजी टू हैंडल योर माइंड. कंक्लूड इट. एंड समटाइम पीपल विल कीप आस्किंग यू. They keep asking you, this is right, this, why are you getting panic, or why are, but this is your method. If you say, say, for example, if you have a disciplined way of life, or if you have a method of a principle of your life, people will ask a question, give answer. नहीं, मेरा ये life का principle है. Honesty, maybe, like honesty. मैं किसी को चीट नहीं करता हूँ,
लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, बोल दो ना, थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या जाता है, काम हो जाएगा तुम्हारा. यू विल से नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, भले काम ना हो जाए, मैं नहीं बोलूँगा. राइट? वाई डू यू से लाइक दैट? Why you are not? Because you know that your principle is more powerful than this work. Right? You have given a conclusion here. In the same way, get a conclusion, a strong conclusion of every incident. बहुत ईजी है. अगर आप अपने दिमाग को कंक्लूजन देते जाएंगे ना, इस चीज़ से ये सीखा, इस चीज़ से ये नहीं करना है सीखा, इससे ये करना है सीखा, तो यू विल नॉट कम अंडर एनीबडीज इन्फ्लुएंस. कुछ नहीं होगा, आराम से रहेंगे. राइट? अच्छा, मुझे खास बताया था थोड़ी देर मेडिटेशन करना है. करना है? करना है मेडिटेशन? ओके, आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग रिलेटेड विथ वेस्ट थॉट्स इन मेडिटेशन. सिंपल मेडिटेशन करें, पीसफुल मेडिटेशन. ओके ओके, सिट स्ट्रेट. माइक वहाँ दे दीजिए. ओके, sit quietly. Need not to close your eyes. If you feel, you can look down. And if you feel very problematic, then only close your eyes. I'll let you know when to close your eyes. Look down on a non-moving object. Now, breathe normally, very normal. Think of your legs. अपने पैरों के बारे में सोचिए. Internally, relax your legs. Loosen your legs. Think of your stomach. Get aware of your stomach. Loosen your stomach. Relax your stomach. Shift your concentration to your shoulders. Feel your shoulders inside. Relax your shoulders. From your shoulders, feel your mouth. Relax your mouth parts. From your mouth parts, bring your concentration to your breathing. Breathe normally. Feel your forehead. At the middle of forehead, visualize a star. It's you. You can close your eyes now. Feel a small tiny star in the middle of forehead. This is life energy. From this forehead, I, the star, I walk inside my mind space. Look at your mind around. New thoughts are coming like a small tiny energy balls
old thoughts are going towards the exit, visualize your mind space. As you go inside, you find an energy folder. This is that important folder where all your memory pieces, all those thoughts which are important or so called important, they are reserved here. I, the star, I get into this energy room. Visualize you are inside your mind space in an energy room which is your deep seated memory. There are some shiny bright thoughts, maybe like beads of light. There are shining beads of light which are my good memories. And there are some dark beads which are my bad memories. I want to forget these painful memories. I, the tiny star, inside the room of inner consciousness, I am getting aware. I can see all my good and bad memories. Now, I take those painful dark memories. I consciously, I the star, I stick to that dark bead of memory. I am taking it out of that important folder. I label it unimportant and throw it out of my inner memory. I throw it to normal course of flow of thoughts. It is not important for me. Think about your life. Think about those painful stories of your life which you are not able to forget so far. Take one of them. Visualize as if that memory is like a dark ball. Label it not important. It is over. Remember that incident. Conclude it. Ask yourself, what God made me learn due to this incident? Answer yourself. जो हुआ उससे मैंने क्या सीखा? Answer yourself. What did I learn with that incident? And now label it non-important. Throw it out of your memory bank. Throw it out of important folder.
cleanse yourself. Now gently coming out of that room of inner consciousness, I, the star, I am back to the middle of forehead. Visualize inside there is a whole big factory of thoughts, a machinery where thoughts are created, nurtured. There is a flow of natural flow of thoughts. There is a memory bank, an important folder, and this whole machinery is my machinery. I am the caretaker of this machinery. I have a choice to keep my memories clean, to eliminate waste, to stay fresh internally. I am a tiny star in the middle of forehead, shining bright white. Om Shanti. So, this is how actually we conclude inside. Acknowledge our previous memories. Label it not important. Do not talking about it again. Do not revising it and leaving it to go in the natural flow. Right? Thank you so much.